Hello बच्चों, we can start here fast revision of alcohols. So in alcohols, what we have to see, this is very important for those students who are preparing for NEET 2020 examinations. So here, introduction of alcohols. These have general formula ROH. So this R is alkyl group. These are mono, di or polyhydric depending upon the number of OH group present in their molecule. These are named as alkanol, that is we can drop this E and this is alkane plus all. So this is IUPAC nomenclature system for alcohol. Another one is they are also called as carbenols, that is CH3OH. Methanol is also called as carbinol. If this CH3, one of the hydrogen, is replaced by R group, then we can call it as a alkyl carbinol. This is another nomenclature system. So some common names of the alcohols are given over here. This is ethylene glycol. This one is CH2OH, CH2OH. It is glycerol. And this is benzyl alcohol. What is this? This is benzene ring, CH2OH, benzyl alcohol. So here we will move towards the methods of preparations of alcohol. So alcohols can be prepared from alkene. If we reacted alkene with H plus H2O, acid catalyzed hydration, it will give alcohol with Markovnikov addition reaction. Alkene also reacted with B2H6OH minus. This is hydroboration reaction. Hydroboration of alkene. Hydrogen and bromine is added. Then oxidative hydrolysis will result in formation of alcohol, and this would be with anti-Markovnikov rule. Alkene also reacted with mercuric acetate in water followed by sodium borohydride. It will give alcohol with Markovnikov rule. Alkene can also reacted with KMNO4 in basic medium or cold condition. It will give cis-1,2-diol. It will give cis-diol and it is 1,2-diol, that is vicinal diol. Aldehydes, esters, acids, ketones also reacts with some reducing agent like lithium aluminum hydride, sodium borohydride, sodium ethanol, H2PDC, all will produces primary and secondary alcohol. So if we reacted aldehydes, carboxylic acids and ester with this reducing agent, it will use the primary alcohol as a product. But for sodium borohydride is useful to convert aldehydes and ketones only. So aldehyde, acid, ester gives primary alcohol with reducing agents and ketones will use secondary alcohol with these reducing agents. Grignard reagent will react with formaldehyde. It will use primary alcohol. Grignard reagent react करेगा अदर aldehyde से तो मिलेगा secondary alcohol, और Grignard reagent react करेगा ester या ketone से, either it will react with ester or ketone. What it will give? It will give tertiary alcohols. So in methods of preparations of alcohol, we will proceed toward the next method. हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट मेथड की हम बात करेंगे. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे इपॉक्साइड की अगर हम रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद इपॉक्साइड इट विल आल्सो गिव्स प्राइमरी अल्कोहल. इससे भी हमको मिलेगा प्राइमरी अल्कोहल. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एस्टर से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे भी मिलेगा हमको टर्शरी अल्कोहल, और यहाँ पे हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना पड़ेगा 2 इक्विवेलेंट, 2 मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अनदर वन इज़ अल्किल हलाइड से हम बना सकते हैं अल्कोहल. अल्किल हलाइड से रिएक्शन करेंगे KOH एक्वियस, NaOH एक्वियस या फिर Ag2O मॉइस्ट, तो यहाँ पे मिलेगा हमको अल्कोहल. सो दिस इज़ फोर्थ मेथड टू प्रिपेयर अल्कोहल. और एक मेथड है फिफ्थ मेथड, उससे भी बना सकते हैं हम. आपने देखा होगा प्राइमरी अमाइन से बना सकते हैं. प्राइमरी अमाइंस RNH2 एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन
reaction with NaNO2 HCl, यहाँ पे ये रिएक्शन करेंगे तब भी हमको मिलेगा अल्कोहल ROH एज ए मेजर प्रोडक्ट. सो इट इज़ नथिंग बट diazotization reaction. So this reaction takes place at 0 to 5 degree and we will get alcohol as a product. So primary amine से भी हम अल्कोहल बना सकते हैं. This is the fifth method to prepare alcohol. इसके अलावा हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं मोलासेस से या फिर स्टार्च से बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स. एंजाइम की रिएक्शन करके हम बना सकते हैं. वो ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो मैंने आपको सेंड किया हूँ, अपलोड किया हूँ यूट्यूब पे, उस पर मिल जाएगा. आगे बढ़ेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल. इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल फर्स्ट वन इज़ बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द मॉलिकुलर मास ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल का मॉलिकुलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बट इट डिक्रीज कम हो जाएगा. ये इसलिए क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया. सरफेस एरिया कम होगा इसलिए. सोलिबिलिटी की बात करेंगे. सोलिबिलिटी कम होगी जब मॉलिकुलर मास बढ़ेगा, यानी मॉलिकुलर मास बढ़ता है तो सोलिबिलिटी उसकी डिक्रीज हो जाती है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे कि रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल रिएक्शन करता है मेटल से, जितने भी मेटल्स है उनसे रिएक्शन करेगा. तो यहाँ पे बनेगा मेटल अल्कोक्साइड. हम अगर सोडियम से रिएक्शन करते हैं तो बनेगा सोडियम अल्कोक्साइड. स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से भी रिएक्शन करते हैं तो बनेगा सोडियम अल्कोक्साइड. अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हालाइड से करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमको अल्किल हालाइड प्लस वाटर. इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहेगी कि रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो आयोडीन फास्ट रिएक्शन करेगा ब्रोमीन से, यानी HBr की रिएक्टिविटी ज़्यादा, HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा, फिर HBr की, फिर HCl की. और HF इज़ वेरी वेरी लिस रिएक्टिव. जनरली वी कैनॉट यूज़ फ्लोराइड HF फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू अल्किल फ्लोराइड. हम हाइड्रोजन फ्लोराइड यूज़ नहीं करते क्योंकि वो कोरोजिव है और टॉक्सिक उसका नेचर है, इसलिए हम उसको यूज़ नहीं करेंगे. आगे बढ़ेंगे. अल्कोहल की रिएक्टिविटी में टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव है सेकेंडरी से, वो ज़्यादा रिएक्टिव है प्राइमरी से. क्यों? क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी, कार्बोकैटायन के थ्रू ये रिएक्शन जाती है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव. अल्कोहल की रिएक्शन करेंगे फास्फोरस के हैलाइड से, PCl5 से रिएक्शन करेंगे तो अल्किल क्लोराइड मिलेगा. POCl3 इसमें बाय प्रोडक्ट मिलता है. ये रिएक्शन में अगर अल्कोहल कायरल है, इफ़ अल्कोहल इज़ कायरल देन inversion of configuration takes place and here we will get alkyl halide with inversion of configuration. अल्कोहल यहाँ पे R है तो अल्किल हलाइड S मिलेगा, अल्कोहल S है तो अल्किल हलाइड R कॉन्फ़िगरेशन वाला यहाँ पे हमको मिलेगा. इसके हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. उसके अंदर आगे बढ़ेंगे. थायोनिल क्लोराइड SOCl2. SOCl2 से अल्कोहल की रिएक्शन होगी, अल्किल हलाइड अल्किल क्लोराइड मिलेगा. SO2 और HCl यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है जो गैसियस फॉर्म में है. दे विल एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द रिएक्शन एंड इट इज़ बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर अल्किल क्लोराइड. और ये रिएक्शन में अगर अल्कोहल कायरल है, इफ़ अल्कोहल इज़ कायरल और असिमेट्रिक अटैच टू OH इज़ अटैच टू असिमेट्रिक कार्बन, देन द अल्किल क्लोराइड फॉर्म विथ रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. यानी यहाँ पे जिस साइड से OH होगा उसी साइड से Cl आएगा, या जिस पोजीशन पे OH होगा सेम पोजीशन इन स्पेस में क्लोरीन अडॉप्ट करेगा. यानी OH अबव द प्लेन है, क्लोरीन भी अबव द प्लेन आएगा. OH बिलो द प्लेन है, यहाँ क्लोरीन बिलो द प्लेन आएगा. इसको हम कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. इसमें OH ऊपर है, अबव द प्लेन है, क्लोरीन आएगा बिलो द प्लेन से, इसको कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. आगे अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से करते हैं, उसको हीट करेंगे हाई टेम्परेचर पे, अल्कीन मिलेगा जो कि ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, मोर सब्सटीट्यूटेड. यानी डबल बॉन्ड पे, वहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा जहाँ पे ज़्यादा कार्बन अटैच हो, यानी उस डबल बॉन्ड पे कम से कम हाइड्रोजन हो, वो अल्कीन बनेगा मेजर.
अल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से करेंगे 413 केल्विन टेम्परेचर पे, यानी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के लेना पड़ेंगे हमको, तो प्रोडक्ट बनेगा ईथर। तो अल्कोहल से हम ईथर भी बना सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इधर आएंगे। अभी अल्कोहल की रिएक्शन असाइल क्लोराइड से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमको एस्टर, RC डबल बॉन्ड OR, सो प्रोडक्ट इज एस्टर ओवर हियर। सो दिस Cl एंड दिस H विल गेट रिप्लेस ओवर हियर। तो यहाँ पे क्या हुआ, H और Cl रिप्लेस, यानी वहाँ से रिमूव हो जाएंगे और हमको प्रोडक्ट मिलेगा ईस्टर। ईस्टर हम बना सकते हैं 3 मेथड से, सिर्फ बाय प्रोडक्ट चेंज होंगे, प्रोडक्ट सेम रहेगा। H चला जाएगा, यहाँ से Cl चला जाएगा, HCl लॉस होकर प्रोडक्ट मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR ईस्टर। एसिड की रिएक्शन करेंगे H+ के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे फिर से मिलेगा RC डबल बॉन्ड OR ईस्टर। ठीक है। अल्कोहल की रिएक्शन अनहाइड्राइड से करेंगे, तब भी हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR, और बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिर्फ बाय प्रोडक्ट चेंज होंगे। अल्कोहल की एसिड से रिएक्शन वाटर बाय प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट ईस्टर मिलेगा। अल्कोहल की एसिड क्लोराइड से रिएक्शन प्रोडक्ट ईस्टर, बाय प्रोडक्ट HCl मिलेगा। और अल्कोहल की अनहाइड्राइड से रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट ईस्टर मिलेगा, बाय प्रोडक्ट यहाँ पे भी हमको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। Alcohol when reacted with, that is primary alcohol, when reacted with copper at 573 Kelvin, it will use aldehyde as a product. Secondary alcohol on reaction with 573 Kelvin with copper, it will give ketone. And tertiary alcohol when reaction with copper at 573 Kelvin, it will give alkene. So different alcohol react differently with copper. If we do the oxidation of primary alcohol with PCC, it will use aldehyde as a product for primary alcohol. If we reacted primary alcohol with strong oxidizing agent like K2Cr2O7 or KMnO4, these are strong oxidizing agent. So what they will produce is, they will get converted प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, वो प्राइमरी अल्कोहल का कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन कर देंगे। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा हमको कीटोन, और हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी। टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर माइल्ड यूज़ करेंगे तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, और यहीं पे हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड विथ 1 लेस कार्बन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एल्यूमिना से रिएक्शन करेंगे अल्कोहल की तो मिलेगा ईथर एट 513 एंड 523 केल्विन, और एट हाई टेम्परेचर लाइक 632 केल्विन it will use alkene as a product. So by using all this chart we have covered all the chemical properties of alcohol. So next point is acidity of alcohol or acidic character of alcohol. So these are less acidic than phenols, and acidity of alcohol is increases with negative inductive I groups, that is NO2, CN or halogens. Okay, and if we deal with the acidic character, so primary alcohol is more acidic than secondary alcohol which in turn more acidic than tertiary alcohol. So here we have to test the alcohol. Test of alcohol, first test is Lucas reagent or Lucas test. What is Lucas reagent? Concentrated HCl plus anhydrous zinc chloride is called as Lucas reagent.
So when primary alcohol is reacted with Lucas reagent, so turbidity does not appears in cold conditions, so we have to heat, then it gives turbidity, so it indicates that primary alcohol is present in our compound. सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं जिंक क्लोराइड HCl से लुकास रिएजेंट से, विद इन 5 मिनट्स टर्बिडिटी या फिर क्लाउडीनेस विल गेट जनरेटेड. टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं सेम लुकास रिएजेंट से हम, तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, तुरंत वहाँ पे हमको टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस देखने को मिलेगा. सेकंड टेस्ट इज विक्टर मेयर टेस्ट. इन दिस टेस्ट वी कैन रिएक्टेड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल विथ phosphorus in iodine, then reaction with silver nitrate followed by nitrous acid. So what we will get for primary alcohol, it will gives blood red color in NaOH. Secondary alcohol will gives blue coloration in NaOH, but tertiary alcohol does not gives any color or any color with this reagent in NaOH. So we can distinguish primary, secondary and tertiary alcohol by using Victor-Meyer test. So the compound form over here, that blood red color compound is nothing but this is nitrolic acid. Okay, the blood red color compound is nitrolic acid made from primary alcohol. Blue coloration is obtained, this is the actual compound that obtained over here, blue colored compound which is pseudo-nitrile having NO and NO2 group attached with the carbon. Okay, so these are some tests that can be used to distinguish primary, secondary and tertiary alcohols.